Mm. Good evening, Khase sir. How are you? Hello, fine, sir. Fine. After a long time. Yeah. Great. Yeah. Unmute करो ना. ठीक है, मैं बाद में लास्ट में मैं म्यूट कर लेता हूँ. गुड इवनिंग महेश भाई. आप लोग को जितना मैं थैंक यू बोलूं उतना कम है, बिकॉज the things which I am hearing from all over the Konkan. I had an office in Chiklun, and it was down almost 18 feet underwater. तो जस्ट इमेजिन करो गांव की क्या हालत होगी. जो मैं सुन रहा हूं, स्ट्रक्चर खाली खड़ा रह गया, बाकी का पूरा घर का सामान, टीवी, फ्रीज, एवरीथिंग is gone underwater or it is just floating outside. घर में कुछ भी नहीं रहा है. तो this is the state of Konkan, most of the Konkan villages. So I thank you all for this contribution. I hope today I am going to definitely give value to you in terms of what the markets are doing, how the markets are, where the market is right now, and कौन से स्टॉक में हमको काम करना चाहिए, आगे जाके कैसे क्या हो सकता है. So this is one of the most important thing where people want to know, okay, what is the status of market, when is the correction going to come in, and nobody knows. Like, you know, this year it was like just one side movement, even when the COVID was in place. So everybody is waiting for the correction, but the correction is not coming in, and that is one very important thing. क्या होने वाला है आगे. So give me just 5 minutes. People are still logging in. थोड़ा late, you know, किसी ने late भरा है तो I had to send that link and all that. Just give me 5 minutes, please. In the meantime, we can listen to wonderful music. Just a minute.
Good evening, sir. Good evening. Good evening. Just 2 minutes because people are still struggling to join in. Good evening, all. Yes, good evening. Okay, let's start. Sure, sure. Can we start? Yes. Okay, great. Thank you, Vinod bhai, for joining in. So, let's start. Yes, sir. Let us start with one thing very important and very this thing is what is that one thing you want from this particular seminar. So let's start with that particular session only. आपको क्या चाहिए यहाँ पे ये सेमिनार में आपको क्या लेके जाना है? Sorry? One thing you want to take away from this seminar which I can help you understand or give away. स्टॉक तो मैं दे दूंगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको एक चीज जो सीख के जाना है आपको. चलो. Anyone? You can unmute yourself, not a problem, and you can even put it on the chat box. But let us have a interaction session. तो मजा आएगा, आपको सीखने का मजा आएगा, आपको समझने का मजा आएगा, and whatever good cause के लिए आपने जो डोनेशन दिया है उसके लिए मैं I am so very thankful to every one of you, because last year also we had done this thing when the lockdown had taken place and we had donated funds, and this year also we got this opportunity again. बहुत तकलीफ है सब लोग के लिए. We are lucky enough that we are in this city where not much is happening, but just imagine करो landslides, 15 feet of mud, पूरा का पूरा गांव getting wiped out. You know, घर में कुछ भी नहीं रहा है. There are people who are staying right now in government shelter or schools because their homes are washed away. So I am really thankful to everyone who has contributed to this particular cause, and definitely ये जो भी आपने contribution किया है plus my contribution will go for the good things to the society. भगवान आप लोग को भी really जो भी है बहुत अच्छा, हमको एक फीलिंग आती है जब ये हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं. तो let's start. Okay, as far as the markets are concerned, okay, what is that one thing you want to learn? मैं एक ट्रेड प्लान आपको दूंगा. Okay, that is from my side. You have to wait till the end. लेकिन एक ट्रेड प्लान आपके साथ में शेयर करूंगा. Okay, you can put it as an algo, you can do a back test, that is one part. लेकिन अभी आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आपको कोई स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है, वो सब तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा. प्लस मैं आपके साथ में ये भी शेयर करने वाला हूं कि अभी निफ्टी क्या कर रहा है और क्या हम लोग देख सकते हैं, कौन से सेक्टर में
हम लोग को पैसा डालना चाहिए, which can really grow in terms of our wealth. Okay, so any questions, anything you would love to understand? So please, मयूर भाई, yeah, आई हैव वन क्वेश्चन. जैसे अभी सन फार्मा का परसों रिजल्ट था, डे बिफोर यस्टरडे, फिर कल इसका आईडीएफसी का बैंक का रिजल्ट, ऐसे ए ग्रुप के रिजल्ट आ रहे हैं ना काफी कंपनियों के, टेक महिंद्रा, तो इनका रिजल्ट से पहले कैसे स्ट्रेटेजी करेंगे? वी डोंट नो ना व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट कैन बी द रिजल्ट. तो हाउ कैन वी डू, वी वांट टू अर्न मनी बट वी डोंट वांट टू टेक मच ऑफ रिस्क, correct. टू अवॉइड रिस्क. तो उसमें कैसे कर सकते हैं? कॉल पुट लेके कर सकते हैं दोनों साइमल्टेनियसली, या कैसे कर सकते हैं? जरा उसका गाइडेंस चाहिए था. Sure, I will definitely give an insight about how to go about when the results are going to come in. Very important question and very good question also. Thank you. Yeah. Anything? Yes, I also have a question. I actually have two questions. Yeah. You know, in the last club meet, when we ended the start of July, you had mentioned something about, you know, trying to specialize in a specific kind of stock and then to trade it. So I have a question in regards to that. When you say specialize, if I was to say that I would like to specialize in Nifty and Bank Nifty on a daily basis, just to look at options basically to trade, right? Is that possible? Yes. Basically, because the thing is, I mean, you of course know the journey that I've been through right now, right? With the whole thing with the Bank Nifty that I was facing through, and then earlier there was a lot of things coming. I was facing a lot. I mean, I got a lot of profits out of Nifty, and that started giving a loss. So then I closed that Nifty thing down, and I started focusing more on the Bank Nifty. But what I've noticed is in the last couple of months, if you look at them simultaneously, to put two charts together now, they tend to move the same direction. So my thing is it better, because now also I've been focusing on a couple of stocks, like you had said, select a couple of stocks. But I feel rather than that, because the options keep expiring every weekend, I feel there's better opportunity to look at only Nifty, Bank Nifty. So I mean, if someone was to move ahead, especially me, if I want to just focus on these two rather than do any of the stocks in options, is this a better thing, or also should we just devote some time basically on the stocks to do options for like month-end things? Okay, very good question. See, specialization as far as the stocks are concerned, right? You need to do your backtesting based on the trade plan, whatever is there with you. Okay, so when you do a trade plan, you come to know what is the range as far as the options are concerned. That means call put ka range आपको मालूम पड़ जाएगा, and then you can play the game right. Okay, it is very important that most of the stocks, okay, some stocks are definitely not liquid, so I will not recommend to do the illiquid stocks. But the stocks such as Reliance, HDFC Bank, Infosys, TCS, Maruti, okay, there are liquid stocks. So if you can just concentrate only on these few stocks in case you want to specialize, that works beautifully well. In terms of call and put, their range is very clear. Okay, 650 ka range as far as the Maruti is concerned. So if you are able to take home 400, 450 points, that is more than sufficient. Okay, you cannot expect to go beyond that. Okay, that there you will not be able to catch the top and the bottom, but most of the time, okay, they work in that particular range sector only. Now, when we are talking about Nifty and Bank Nifty, okay, बहुत important हो जाता है कि why we do a specialization, because every weekly there is an expiry. That is good. Now, whenever it goes to one side, okay, you have two strategies. A strategy, you can buy a call and sell two puts if the market is going one side. Buy one call, sell two puts if the market is going one side upside. If it is going one side down, then you buy a put and sell two calls. That is one part of the strategy. Then you have this theta decay strategies. Okay. Now in the theta decay, you have to again do a back testing. In what way? That what is the maximum weekly movement the Nifty or the Bank Nifty can do based on your study, based on your data. Okay, what is the maximum? That means around 450 to 600 points
is all what you want in terms of the bank nifty, and practically going down to about 200 points. So 400 में से 200 point you are going to get as a theta decay. Okay, don't expect more, because here what we are doing on a regular basis, we are trying to churn. Okay, and this is going to work out. I'll show you the way out, but we have to practice this again and again and again and again to get the things. If you take 100 trades, and if your 70 trades goes right, 80 trades goes right, your trade journal will show you the thing where we are going wrong or what mistakes we are doing. Now you cannot repeat the mistakes again and again. That is where the risk management comes into picture. Okay, so most of the time what we normally do, and why the mistake of stock market में पैसा क्यों नहीं बनता है, one reason you can find out is we mix up. दो चीज हम लोग mix up कर रहे हैं. What is that mix up? Is you are not defining yourself. Are you an investor or a trader? Now the whole thing between an investor and a trader is the time period of the game what is being played. अगर आप इन्वेस्टर करके काम करना चाहते हो, then you will have to buy and only think about buying. That means आपको नीचे में बाय करना पड़ेगा और ऊपर में बेचना पड़ेगा. That's the only way investor can make money. Second is उसमें आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसमें आपको थोड़ा एडिशनल एडवांटेज है. एंड द लास्ट एडवांटेज एज फार एज इन्वेस्टर इज कंसर्न इज आपको बोनस मिलता है. दैट्स द थ्री वे यू कैन अर्न एज एन इन्वेस्टर. ओके, बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक यू आर बाइंग एंड व्हाई यू आर बाइंग. Very important. So let me help you understand that, and then we are going to go to the Nifty as well. So for the sake of all these people who are new to the stock market, आप please question answer पूछना कि आपको ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है. So मैं उसका भी आपको आंसर दे सकता हूं. जिधर आपको नहीं समझ में आवे मेरे को बोलना, and I will stop. पहले हम लोग वो एड्रेस करेंगे, okay, and then we will move forward. So let me share the screen and make you understand in terms of how to invest. Okay, very very important, because there are few people who wants to only look at the investment side. Okay, so investment के point of view से आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बात जो मैं लास्ट एक साल से मैं सब लोग को बोल रहा हूं, जो भी आपका कैपिटल है, ओके, जो भी आपका कैपिटल है वो कैपिटल को आपको डिवाइड करना है. से यू हैव 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल जो आप एज एन इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले हो मार्केट में, तो यू डिवाइड दिस बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10 करो. दैट मीन्स कोई भी एक स्टॉक में आप 10,000 रुपए के ऊपर आप इन्वेस्ट मत करो. दैट इज द वे आई लुक एट इट. ओके, नाउ 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है और आप नए हो मार्केट में. ओके, अभी आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपीज का है, तो आपने डिवाइड किया है 10 से, एंड नाउ यू हैव 10,000 रुपीज. नाउ यू वांट टू इन्वेस्ट दैट इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक. प्लीज, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. जो भी आप स्टॉक खरीदने वाले हो उसका खाली 30% आपको खरीदना है अभी के लिए. 30% इज ऑल व्हाट यू नीड. 30% अभी जो भी प्राइस में मिल रहा है ले लो. एक दिमाग से वो निकाल दो, ओ माय गॉड मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया. दैट मीन्स ये जो 10,000 है जो आपको इन्वेस्ट करना है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपने 3,000 रुपए का जो भी स्टॉक का वैल्यू होगा वो आपने ले लिया. करेक्ट? ओके, आफ्टर 3 वीक्स और 3,000 रुपए का ले लेना, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स आप बाकी का जो भी है वो उठा लेना.
ओके, सो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो इन्वेस्टमेंट ये तरीके से आप एंट्री कर सकते हो अभी। ओके, अभी प्राइस कहां पे है, क्या कर रहा है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये आपको प्लान ऑफ एक्शन रखना पड़ेगा सो दैट यू डोंट फील लेफ्ट आउट। और अगर आपने सपोज सन फार्मा भी अभी एक हफ्ते पहले लिया होता तो भी सन फार्मा ऊपर भाग जाता एंड यू विल फील गुड अबाउट इट कि चलो भाई मेरे को कुछ तो मिला। ओके, मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू रन अवे। ओके, अभी जो वी शेप का उसने रिकवरी लिया है, ओके, वो रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये डांस करवाएगा डेफिनेटली। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स होने वाली है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव दिस एंट्रीज इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ विच टाइप ऑफ स्टॉक, तो आपको जो स्टॉक आपको खरीदना भी है तो कौन से स्टॉक को खरीदूं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि स्टॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक जो स्टॉक्स है, जो बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं, वो ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक्स है। एक जो स्टॉक है वो ग्रोथ भी है प्लस वो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। ओके, और जो थर्ड टाइप का जो स्टॉक है वो बेसिकली ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है। ओके, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ये है। आपका ग्रोथ वाला है, ग्रोथ प्लस डिविडेंड एंड ओनली डिविडेंड। मींस डिविडेंड में क्या होगा कि आपका यील्ड ज्यादा आता है, सिंपल एज दैट। सो आपको क्या करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, जनरली ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और आपको डिविडेंड का इंपॉर्टेंस है, अगर मैं बैंक में रखता हूं मेरे को 5% का ब्याज मिलता है, लेकिन मेरे को 5% का ब्याज के साथ में मजा नहीं आ रहा है, तो आई विल गो फॉर डिविडेंड बेस्ड स्टॉक। ओके, एंड यू विल हैव टू सर्च फॉर डिविडेंड बेस्ड स्टॉक एंड वो स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। तो हाउ मच इज द परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कितना परसेंटेज में डिविडेंड बेस पे रखूं। तो अगर उम्र बड़ा है तो आई वुड से एटलीस्ट 50% आप डिविडेंड बेस में रखो सो दैट आपका कैपिटल इरोजन कम होगा और आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। कोई स्टॉक का जो डिविडेंड है वो 8% से लेके 10.5% तक का डिविडेंड मिल रहा है, विच इज गुड इनफ, बेटर देन द बैंक्स ऑल्सो। प्लस जो स्टॉक में उसका थोड़ा बहुत भी ग्रोथ होगा वो ग्रोथ अलग से आपको मिलने वाला है। सो बहुत सारे स्टॉक हैं जो 6% से लेके 10% का 11% का डिविडेंड देते हैं, तो ये स्टॉक आपको डिविडेंड बेस्ड स्टॉक लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ प्लस डिविडेंड। ग्रोथ प्लस डिविडेंड में क्या होता है कि स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट भी देता है और थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। ओके, एंड देन देयर इज अ ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स। ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे एचडीएफसी है और एचडीएफसी बैंक है, वो कभी भी आपको डिविडेंड देता ही नहीं है, और देगा तो इतना ऐसा देगा कि वो ना के बराबर है। बट ये सब स्टॉक है जो ग्रोथ में बिलीव करते हैं, वो भागते रहते हैं ऊपर के साइड पे, तो आपको वो एडवांटेज दे देते हैं कि आपका जो पैसा है थोड़ा ग्रो कर रहा है। सो मोटा मोटा अगर आप ये 3 चीज में अगर आप डिवाइड करते हो आपके पोर्टफोलियो को, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगा प्लस आपका डिविडेंड भी मिलेगा। अच्छा, ध्यान रखना ये वाले जो स्टॉक है ग्रोथ प्लस डिविडेंड वाले, जो जिसको ज्यादा करके मिड कैप या तो स्मॉल कैप बोला जाता है, ओके, वो जब भी मार्केट गिरते हैं तभी ये वाला सबसे ज्यादा गिरते हैं। ओके, तो ये वाले जब भी गिरते हैं तो आपका कैपिटल का इरोजन कम होना चाहिए। सो दैट इज वेयर योर ग्रोथ वाले जो स्टॉक है ये आपको हेल्प करता है कुशन देने के लिए। ओके, सो दिस इज द वे I have started to actually started investing,
एंड बहुत सारा अच्छा पोर्टफोलियो हम लोग शांति से बना सकते हैं इसको विथ द वे कैपिटल डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स मैक्सिमम आप 10 स्टॉक खरीद सकते हो और आपको बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि क्या होता है आप उसको मॉनिटर ही नहीं कर सकते हो। ओके, टू मैक्स। ओके, आप 20 स्टॉक को लो, लेकिन क्या होगा कि एक स्टॉक भागेगा, राइट, और उसमें आपका कैपिटल कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए राइट नाउ दिस इज द आइडियल वे। 10 स्टॉक लो, आइडेंटिफाई करो कौन से ग्रोथ वाले हैं, कौन से ग्रोथ प्लस डिविडेंड वाले हैं, एंड कौन से प्योर डिविडेंड है। ओके, गवर्नमेंट के पीएसयू है, वो डिविडेंड अच्छा देते हैं। एचयूएल और आईटीसी है, वो भी डिविडेंड अच्छा देते हैं। सो ये आईटीसी भले नहीं चला है, लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 8 to 10.5 का है। सो इवन इफ दे डोंट रन अवे, उसका गवर्नमेंट यील्ड मींस जो उसका जो एक्चुअल यील्ड है अगर ज्यादा है तो मेरे को आई एम ओके विथ दैट। ओके, जैसे ग्रोथ वाले मैंने आपको बताया, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, वो आपको डिविडेंड नहीं डिक्लेयर देते, लेकिन उसमें ग्रोथ अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, और ये जो है वो मिड कैप वाले हैं, दैट वी विल डिस्कस एट अ लेटर स्टेज। ओके, ये मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस और आई विल गो अहेड। जिसको पूछना है प्लीज पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन गो अहेड एंड आई कैन गो मोर डीप इनटू इट, और ये ठीक है एज फार एज द बेसिक्स आर कंसर्न। ओके, ओके, हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो हम लोग ले लेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा इसका इन्वेस्टमेंट का प्लान ये तरीके से होना चाहिए। Can I go ahead? Any questions? No, sir. ओके, एज के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको प्लस माइनस करके रखना पड़ेगा। मींस आपका एज ज्यादा है तो आपको डिविडेंड वाला कंपोनेंट ज्यादा रखो, सो दैट आपको रेगुलरली इनकम जनरेट हो सकता है। ओके, और इसमें ग्रोथ वाले में थोड़ा कम डालिए। ओके, तो ये ज्यादा करके डिविडेंड आपको रेगुलर इनकम देगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप एज के हिसाब से यहां पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम चाहिए अपने को, लेकिन डिविडेंड बेस ज्यादा चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है? कैन आई गो अहेड? ग्रेट, चलो प्लीज इन केस एनी क्वेश्चंस feel free to ask, don't worry. Okay, time is not a constraint. जितना भी लंबा खींचना है खींचो, because you are special to me today. Okay, because of the good work you have carried out. Okay, love you for that. चलो, let me share. Okay, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। ओके, मार्केट कहां पे है और क्या कर रहा है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द निफ्टी। अभी देखिए, ये वीकली चार्ट है एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। ओके, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ता हो गया निफ्टी साइड में चला गया है। ओके, लेकिन इसका मतलब यह है कि निफ्टी नीचे है? डेफिनेटली नो। नाउ यू कैन सी दिस कि निफ्टी कहां से उसने जर्नी चालू किया था, ऑलमोस्ट 7500 से लेके जब वो गिरा था उसने वी शेप का रिकवरी लिया है, एंड अभी भी इट इज एट ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। इफ आई लुक एट द मंथली, ओके, मंथली में भी इट इज राइट एट द टॉप,
ओके, ये मंथ को हम लोग नहीं देख सकते अभी, जो नया मंथ स्टार्ट होगा कल से, दैट इज द वे इट इज गोइंग टू बी। ओके, खाली एक वर्ड ऑफ कॉशन, लास्ट मंथ हैज एंडेड एज अ डोजी, दैट मींस इनडिसीजन राइट एट द टॉप। ओके, और उसका जो रेंज है, ओके, लेट मी पुट इन द रेंज, इसका रेंज आपको मैं बता देता हूं। इफ यू हैव अ बुक एंड पेन यू कैन राइट डाउन, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक एंड पेन नहीं है तो प्लीज जाके लेके आइए, और आपको अगर रेंज लिख के रख लेना है तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन द कमिंग डेज। ओके, हाई ऑफ द निफ्टी इज 15,962 and the low being 15,513. ओके, सो ऊपर के साइड पे 15,900 मींस ऑलमोस्ट 1,600, एंड नीचे के साइड पे 15,500। सो 500 पॉइंट्स के रेंज में ये डांस किया है पूरा का पूरा जुलाई महीना। ओके, लुकिंग एट द वीकली चार्ट, वीकली में भी आप देखिए ऊपर नीचे करके इट इज जस्ट डांस्ड ओवर हियर, एंड अगर आप उसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो द एवरेज इज समवेयर अराउंड 15,700। सो ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 300 पॉइंट, और सब हर एक टाइम पे वो समवेयर ओवर 15,700 के आजू बाजू में ही उसने बंद किया है। ओके, one more point as far as this is concerned, weekly mein it's a hammer coming right at the top. Okay, now let's check this out as far as the daily charts is concerned. Now daily chart में, डेली में इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन स्टॉक तो अभी भी भाग रहे हैं। ओके, न्यू आईपीओज आर कमिंग, ओके, एंड आईपीओज आर रनिंग। सो करना क्या है, ओके, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मार पड़ती है, राइट? तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक में क्या चीज चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो आप मेरे को बताइए, विच आर द सेक्टर्स विच यू फील दैट द सेक्टर्स आर वर्किंग राइट नाउ? Software and pharma. Software and Metal. pharma. Which other sector? Commodity. Commodity, yes. Which other? Metal. Metal, sugar, textile. Correct. So technically speaking, एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के खींच रहे हैं, yes or no? And this is continuously going on. अभी आप देखिए, ये निफ्टी रिलेटेड है, ओके? तो अगर मैं यहां पे ये करता हूं तो सन फार्मा was the one which was going up, while हिंडाल्को, that is basically क्या है, स्टील सेक्टर रिलेटेड या तो कमोडिटी बेसिकली, ओके, कमोडिटी को उन्होंने नीचे रखा, लेकिन उसके एग्जैक्टली एक दिन पहले कमोडिटी वाज अप, यस और नो? लेट्स चेक दिस आउट। से टाटा स्टील, ओके, टाटा स्टील वाज अप एंड नाउ एक दिन में इट वाज डाउन टू 1.67%, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा स्टील सेक्टर को इन्होंने खींच लिया था। ओके, check this out. Okay, now steel sector को खींच के ऊपर ले लिया है। Okay, check this out and check the IT sectors. Okay, ऊपर खींच के is this not into consolidation mode? लेकिन अगर मैं IT में देखूं तो अभी भी जान है। Please understand this. IT, okay, चलो HCL Tech को देखते हैं, came right at the top, okay, 1047 and it is danced. So IT still going strong, okay. अभी यहां पे it has not gone beyond this 1050 levels,
Okay, as far as HCL Tech is concerned. Infi, okay, Infi धीरे 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 करके भी ऊपर जा रहा है. अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन्फी ने 1700 रुपये पे बाईबैक का अनाउंसमेंट किया. Okay, so people have bought Infi at the lower rate and they are waiting for the buyback. मैं लेके जाऊं वापिस, मेरे को नहीं चाहिए, तो भी they are going to earn at least 100 rupees on this. Okay, let's check this. It is still up. Think about this. Mindtree still up. Okay, so which is the sector which is strong and up? भले करेक्शन आया उसका अलग बात है, लेकिन करेक्शन बहुत बड़ा नहीं आया. Okay, one is the IT sector. So IT sector में in case somebody is being left out, okay, जब भी ये correction mode में आता है, तो you can buy the IT stocks. Okay, selection of IT stocks करके रखो and you can buy so that you can get that advantage of the growth. IT stocks are mostly growth and dividend also. They pay dividend. जैसे Infosys ने किया था and split भी हुआ, dividend भी दिया, back to back dividend दिया and अभी वापस जिधर है वहां पे है. So Tech Mahindra, ये देखिए. अच्छा, सुनील का क्वेश्चन था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा बिफोर द रिजल्ट्स, करेक्ट? तो ध्यान रखिए, जनरली ओके, व्हाट यू नीड टू चेक इज योर ओपन इंटरेस्ट. सेकेंडली, वॉट एवर यू कैन चेक आउट इज एक सिंपल रूल ऑफ द गेम जो हम लोग करते हैं, इज where is the stock right now? Where is the stock right now and what it is doing? Where is the stock right now and what it is doing? Okay, so think in terms of any three moving averages. In terms of any three moving averages, generally I am saying 20, 50 and 200 day ka moving average. Okay, so just changing this to 20, 20 and 200 day का moving average. Okay, so generally हम लोग को मालूम है कि what is the advantage you can get. Think about this. शेयर करता हूं. Okay, so you have one moving average, you have the second moving average and you have the third moving average. Okay, so this is the 20, this is your 50 and this is your 200 ka, correct? So to get this three ka, this thing between 50 and 200, is this not a golden cross? So whenever you see the price going up, whenever you see the price above this moving average, you want to become a buyer. Okay, you want to buy, it is above the 50 and 200 day moving average. ये एक बहुत ही अच्छा और गोल्डन रूल है फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो कि जब भी प्राइस 50 और 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है. सिंपल लॉजिक और कुछ नहीं दिमाग वापरने का. ओके, एंड एज एन इन्वेस्टर प्लीज ध्यान रखना, आपको एग्जिट भी आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है एक दिन में, जैसे डॉक्टर रेड्डी अभी 2 दिन के अंदर अंदर 15% नीचे चला गया, तो एग्जिट भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एग्जिट में क्या कैसे करना है, मेरे को एग्जिट कैसे करना है, तो यू यूज द सेम 3 मूविंग एवरेज. ओके, तो व्हेन 20 के नीचे, 50 के भी नीचे और 200 के नीचे, जब ये प्राइस ये सब मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है, तो I want to exit because this is called as a death cross. Very important, simple rule
कोई दिमाग ज्यादा वापरने की जरूरत नहीं। अगर जो भी टिप भी आता है आपको कि ये चीज को आप बाय करो, सिंपल आप एनएसई के वेबसाइट में जाइए, बीएसई के वेबसाइट में जाइए, वो स्टॉक को ओपन करिए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो मूविंग एवरेज डाल के देख लीजिए, 50 एंड 200 डे। उसके ऊपर प्राइस है तो मेरे को बाय करना है, इसके नीचे प्राइस है मेरे को हाथ नहीं लगाने का, मेरे को एग्जिट करना है अगर मैं बाय में बैठा हूं तो। चैप्टर ओवर। ओके, सो दिस यहां पे जब भी आपने डेथ क्रॉस देखा है तो आपको सेल करना है, आपको बाय नहीं करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे अ इन्वेस्टर कैन मेक लॉट ऑफ मनी। ओके, जस्ट चेक आउट आपका स्टॉक कहां पे है। ओके, इज इट अबाउट द 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज? वांट टू बाय, सिंपल रूल्स। आपको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं मालूम है, डोंट वरी, नॉट टू दिमाग नहीं वापरने का है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए, 50 के ऊपर आना चाहिए, ब्यूटीफुल, एंड देन 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए, तो दिस विल बी योर थर्ड बाय। सुपर वे ऑफ गोइंग अबाउट। इसका एग्जांपल भी हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्लीज? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, तो लेट मी शो यू विद द एग्जांपल्स। अभी देखिए हम लोग ने क्या बताया था, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 डे के मूविंग एवरेज। जब भी प्राइस इसके ऊपर रहता है, इट्स अ बाय, राइट? नाउ चेक दिस आउट, प्राइस वाज डांसिंग एंड देन द प्राइस स्टार्टेड टू मूव हाई। तो अभी क्या है, सिंपल रूल्स ऑफ द गेम, प्राइस इज अबव। तो ये वाला जो रूल है, ये रूल को आपको सिंपल सादा बाय में बैठना है। ओके, इट इज अबव द 200, अबव द 20 एंड अबव द 50। ये तीनों एवरेज के ऊपर चल रहा है एंड यू आर इन अ बाय बाय बाय। सो ऊपर नीचे भले जाने दो, जब तक क्रॉसओवर नहीं आएगा आई एम इन द बाय। ओके, सो सिंपल रूल है, कुछ ज्यादा दिमाग वापरने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, देखिए मैं आपको जस्ट बताता हूं कि सन फार्मा का बाय किधर आया। ओके, लेट्स चेक दिस सन फार्मा। तो सन फार्मा का बाय कहां पे आया, जहां पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ, राइट? तो कहां पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ? ऑलमोस्ट एट 400 रुपए के उधर, यहां पे 434, 435। ओके, तो यहां पे आपका क्रॉसओवर आपके पास आ गया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, प्राइस वाज नॉट गोइंग अबव दिस 430 एंड देन द प्राइस स्टार्टेड टू मूव अप। ओके, अभी देखिए क्रॉसओवर आया, फिर से ऊपर नीचे गया एंड नाउ इट इज एट 738, ऑलमोस्ट डबल होने के लिए आया। सो एक सिंपल रूल, कोई भी आप स्टॉक बता दीजिए एंड आई विल शो यू हाउ इट इज वर्किंग टू अवर एड। कोई भी एक स्टॉक बताइए तो आपको स्टडी। बायोकॉन, बायोकॉन। ग्रेट, चलो लेट्स गो टू बायोकॉन। अभी बायोकॉन जो है वो लास्ट 3 महीने से मेरे ख्याल से वो 400 के रेंज में डांस कर रहा है। ओके, 385 और 400 के बीच में ये डांस कर रहा है। अच्छा, नाउ चेक दिस आउट, वेरी गुड, you are buying when the crossover comes in, that is your golden cross. Correct? तो 235 240 के आजू बाजू उसका बाइंग आया and till where it went 478. okay, और अभी in case you are a player wherein you are an investor के point of view से, so do you want to get out over here when the crossover came in and technically you are out in terms of death cross. तो ये death cross हो गया
and you get out of the trade. ओके, इसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे आपकी एंट्री आई और यहाँ पे आप एग्जिट कर लिया, खत्म हो गया। अभी जब ये वापस गोल्डन क्रॉस बनेगा तभी मैं फिर से एक बार एंट्री ले सकूंगा एंड लेट द प्राइस देन गो अप। बट यहाँ पे आप देखिए ये कहां पे आया, ऑलमोस्ट फरवरी एंड के आजू बाजू इसका डेथ क्रॉस आया और लास्ट 4 महीने से 5 महीने से ये बिल्कुल चला नहीं है। ओके, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर सस्टेन ही नहीं हो रहा है बिकॉज ये डेथ क्रॉस आ गया। अभी जब भी ये प्राइस ऊपर जाएगा, प्लीज ध्यान रखना, व्हाट आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू इज कि ये तीनों मूविंग एवरेज जब भी ऐसा दिखेगा एंड प्राइस विल गो अप, तभी इट इज गोइंग टू रन लाइक दिस। ओके, अभी बहुत सारे छोटे स्टॉक्स बहुत ऊपर भाग गए हैं एंड पीपल आर सेइंग ओ माय गॉड मैं रह गया, बाकी का सब लोग कमा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी छोटे वाले स्टॉक में अगर डेथ क्रॉस आया और ये सब आया, आपको मैं एग्जांपल के साथ में बता सकता हूं कि बहुत बुरी हालत हुई है एंड पीपल हैव लॉस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। सुजलॉन की बात कर लेते हैं। चलो, आप अभी क्या करना चाहिए इसके लिए? अभी के लिए एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टॉक अच्छा है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, नॉट टू वरी। ओके, क्योंकि ये 6 महीने के रेंज में है, एक अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट एंड इट इज गोइंग टू गो अप। ओके, बहुत सारा एपी है। ओके, अगर रूल के हिसाब से चलते हैं तो एग्जिट है, अगर रूल के हिसाब से फिर से एंट्री कभी आएगी जब ये तीनों का क्रॉस ओवर आएगा, चैप्टर ओवर। ओके 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 ओके, यहां पे देखिए ये छोटे स्टॉक में आदमी क्या मस्ती करते रहता है और कैसे उसका पैसे का पानी होता है, ये एक बड़े में बड़ा एग्जांपल है। आप देखिए 458 वाला स्टॉक कहां पे सो गया है। 2008 में ये बंदा 458 पे था और आज की तारीख में कहां पे है, 6 रुपये पे। सो प्लीज डोंट बाय सच स्टॉक्स। ओके, इवन इफ दे आर रनिंग अवे, आप चेक करो गोल्डन क्रॉस और सिंपल रूल के हिसाब से। अब देखिए यहां पे डेथ क्रॉस आया एंड द प्राइस हैज कम डाउन, 21 रुपये वाला भी नीचे 4 रुपये पे चला गया। ओके, अभी 40 रुपये पे भी डेथ क्रॉस आया और वो 40 रुपये वाला नीचे 10 रुपया हो गया। सो एक बार डेथ क्रॉस आता है तो एक दिमाग में डाल के रखो, बहुत बुरी हालत खराब करके रख देता है। ओके, सो डेथ क्रॉस इज नथिंग बट इंडिकेशन टू अस, बॉस मैं खराब हूं, मीन्स प्रैक्टिकली फंडामेंटली खराब हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है। ओके, प्रैक्टिकली फंडामेंटल में कुछ तो गड़बड़ है ना, कि जो 350 वाला स्टॉक अभी 6 रुपया हो गया, तो ये डेथ क्रॉस है, इसको डेथ क्रॉस बोला जाता है। वेरीन प्राइस इज बिलो द 50 and 200 डे मूविंग एवरेज। ओके, वन मोर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ओके, MTNL अभी बताइए 200 रुपीज, 208 में 200 रुपए का प्राइस था एंड अभी क्या प्राइस है, 21 रुपया है। ओके, नाउ इसका जो गोल्डन क्रॉस कहां पे आया, गोल्डन क्रॉस कहां पे आया, 8 रुपीज पे, 8 रुपीज वाला 21 रुपीज हुआ। ओके, सो व्हेन यू फाइंड दिस गोल्डन क्रॉस कमिंग इन, I want to buy when the golden cross coming in, and ये वाले सब स्टॉक में एक ही चीज है, आपको एग्जिट करना आना चाहिए, नहीं तो अगर आप फंस जाते हो तो ये सब सर्किट लगता है तो बुरी हालत खराब करके रख देता है। यस सर, निकलने के लिए नहीं देता है। ओके, तो मैं जनरली ये सब स्टॉक में काम
आज की तारीख में नहीं करता हूं, लेकिन मैं अगर करता भी हूं तो अगर मेरा पैसा डबल हो जाता है, ये 3 टाइम्स हो जाता है, तो एटलीस्ट 50% का मैं बुकिंग कर लेता हूं, 50%। ओके, तो मेरा प्रैक्टिकली ये स्टॉक जीरो वैल्यू पे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज जो भी मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैंने घर पे लेके आया हूं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट उसको भी मैं घर पे लेके आया हूं। ओके, एंड देन आई कैन राइड दिस स्टॉक wherever it wants to go, I am fine with that. Okay, so this is how आपको गोल्डन क्रॉस का एक एडवांटेज अगर आपको लेना है तो दिस इज द एडवांटेज यू कैन टेक। सिंपल रूल्स, ओके, अबव द 50, अबव द 200, एंड वंस इफ देयर इज अ गोल्डन क्रॉस, प्राइस विल गो अप। ओके, कितना ऊपर जाएगा क्या, उसका फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अभी जैसे टेक्सटाइल्स का चल रहा है, ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड टेक्सटाइल्स। ओके, कोई भी एक टेक्सटाइल वाले स्टॉक को बताओ। वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान पॉलिटेक, चलो लेट्स चेक। अभी देखो, ये स्टॉक में आपको लगता है कि दम है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि दिस यहां पे गोल्डन क्रॉस आया 3 रुपए पे के 4 रुपए पे, वट एवर, ओके, और 4 रुपए वाला 33 रुपीज। लेकिन सर्किट के ऊपर सर्किट लगता है, अभी जब ये नीचे का सर्किट लगता है तभी आप लोग को एग्जिट भी नहीं मिलता है। ये देखिए, इंडो काउंट, हाँ जी, इंडो काउंट, ICIL, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ICIL, ICIL, अच्छा, ICIL, हाँ जी, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, इंडो काउंट, इंडो काउंट, अच्छा, काउंट, इसका नंबर बताइए तो। बीएससी में है क्या, एनएससी में? शायद तो BSc में होगा सर। इंडो कौन इंडो काउंट, काउंट है? इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ओके, एक मिनट, हाँ ये रहा, ICIL, ओके। हाँ जी, हाँ जी, टाटा, oh my God. ओके, सो इंडोकॉन, ओके, गोल्डन क्रॉस कहाँ पे आया? 35 रुपए पे, 35 रुपीज पे गोल्डन क्रॉस हुआ, और 35 रुपए वाला कहाँ पे भाग गया है? वाह, लखपति क्या करोड़पति बन गए आप, 250। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी क्या करना चाहिए? होल्ड और सेल, होल्ड और सेल, 50% को सेल करो सर। ओके, ओके, एक मिनट, 50% को भी सेल करने का जरूरत नहीं है, एक सेकंड, इसमें भी एक टेक्निक आपको मैं बताता हूं, वो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें आप वीकली चार्ट में जाइए, ठीक है? अभी आपने कहां पे बाई किया है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आपको वीकली चार्ट में जाना है। वीकली में ये 50 एंड 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, मींस वीकली में अभी के लिए स्ट्रांग है। मंथली में देख लेते हैं, तो मंथली में भी ये एक मंथ में 184 वाला 245 हो गया है, ठीक है? तो इसमें अभी कैसे क्या करें, दैट इज द थिंग, इसमें कैसे करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपल, अभी के लिए हम लोग फिबोनाची रेशियोज डाल के रख सकते हैं यहाँ पे, ओके? तो दिस इज योर फिबोनाची रेशियो। तो 215 तक आने के लिए राह देख सकते हो क्या? आपकी एंट्री क्या प्राइस पे है मेरे को नहीं मालूम है, क्या प्राइस पे एंट्री लिया है आपने? 193 का है सर, 193 का है, राइट? और आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, राइट? सपोज आपने 50% निकाला उसका, तो दैट मीन्स आपकी 193 की कॉस्टिंग है वो सीधा सीधा 100 रुपए से नीचे चला जाएगा, बाकी का 50% का, एंड देन यू कैन राइड इट आउट।
ओके, लेकिन अगर आपने देखा कि ये 255 के नीचे चले जाता है, then you should exit, क्योंकि अभी ये डांसिंग करेगा अप टिल 215 आके फिर से ऊपर जाएगा, तभी देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपल, यहाँ पे एक पार्ट बुकिंग कर लो, ओके, एंड फिर यू कैन राइड योर वेव्स। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर बोलता हूं कि ये सब जो भी स्टॉक्स है, ओके, जब भी ये आपको डेली चार्ट में ये बेरिश एंगल्फिंग जब भी बनता है, या तो 1 2 3 रिवर्सल अगर आपको मिल जाता है, फिर इसमें बैठने का कोई मतलब नहीं। ओके, इसके लिए आपको बोला कि 254 आपका लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। अगर ये 254 के ऊपर रहता है तब तक गुड इनफ, लेकिन 254 के नीचे जाएगा तो इट कैन कम डाउन टू 215 भी। फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो वापस जिधर है उधर आ गया तो फिर कोई फायदा नहीं। ओके, चलो आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूं कि 240 मिनट्स में उसने क्या किया है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग ऑलरेडी आपको दिया है, देखा। ओके, सो पार्ट बुकिंग कर लो, नीचे में फिर से मिलेगा तभी देख लेंगे, फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तभी आप एग्जिट कर सकते हो उसमें से। बुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी अदर स्टॉक? अब तो सर बहुत है, रात तक आपको मिलाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गया। जो भी छोटे स्टॉक्स आपके पास है, बराबर है, इसमें बुकिंग नहीं करोगे आपका पैसा लॉक हो जाएगा। 2008 वाला स्टॉक अब 2022 तक। એક મારો કોન્ફરન્સ કોલ પતે ओके, કોન્ફરન્સ કોલ પતે એટલે ओके, ठीक है, चलो इस एक छोटा Can सा, I ask more? सॉरी, Can I ask some more? या प्लीज वन मोर। TV 18 and Network 18. ओके, अगर 2 साल के लिए भूल जाने का है तो दोनों को भूल जाइए। ओके, अभी देखिए वीकली में कभी भी ध्यान रखने का कि बेरिश एंगल्फिंग जब भी होता है तभी वो एक बार के लिए नीचे आ जाता है। Okay. ये गोल्डन क्रॉस हुआ, प्राइस Yeah, हो गया, ओके, 31 से ऑलमोस्ट ये 1 2 3 रिवर्सल, ये अपना सिंपल रूल्स ऑफ द गेम, 1 2 and 3 रिवर्सल और ये गोल्डन क्रॉस, राइट, प्राइस ऊपर गया। ओके, अभी करेक्शन लिया, फिर से ऊपर जाने का हिसाब होगा, लेकिन अभी ये लेवल्स है 36 मंथली सपोर्ट है, जिसने ये 36 मंथली सपोर्ट में उसने सपोर्ट ले लिया है। Okay. अगर 1 से 2 साल का होराइजन है तो यू आर लुकिंग एट प्राइस एट 65 to 82। 2 साल होराइजन, इमीडिएट नहीं, ठीक है। Immediate sale. नहीं, अभी देखिए, अभी सेल का कैसे मैं बता सकता हूं, क्योंकि सेल यहां पे 44 पे था। ये जब भी बेरिश एंगल्फिंग होता है तभी ये लाइन है 41 42 का। अभी ये छोटे स्टॉक में एक ही पंगा है, एवरी क्वार्टरली वो रिजल्ट देगा और ऊपर नीचे करते रहेगा। Okay. इसके लिए बुकिंग करना जरूरी है। Okay. अभी देखिए, जैसे ये 44 के ऊपर जाएगा ये फिर से ऊपर का जर्नी चालू हो जाएगा। तो दिस इज अ फर्स्ट वेव, यू नो, ऑलवेज ध्यान रखने का कि जब ये गोल्डन क्रॉस आया, ये देखिए फर्स्ट गोल्डन क्रॉस कहां पे आया, 20-22, राइट, ऑलमोस्ट 40 तक गए, डबल पैसा दिया। ओके, फिर ये आधा 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया। ओके, यहाँ पे सेम तरीके से ऊपर गया 50% का रिट्रेसमेंट, अभी वापस
6668 ओके, तो एक्सटेंशन आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज योर एक्सटेंशन। जैसे ये एक्सटेंशन हो गया फ्रॉम वेयर टू वेयर इट वांट्स टू गो। तो अगर ये 48 विल बी द एक्सटेंशन ओके, और उसका टारगेट फिर 63, 64 और ये 70, ये यहां तक, ठीक है सर ओके। आप देखिए अभी ये रेंज में भी देख लीजिए, ये आपका डेथ क्रॉस आया, आपको एग्जिट करना है, आपका गोल्डन क्रॉस आया, अभी आपको बाय करना है। अच्छा सिंपल रूल्स है, देखिए ये 57 में आप एग्जिट किया, आपको 21 के आजू बाजू आपको बाय करने के लिए फिर से मिल गया। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके सामने है कि जब भी ये डेथ क्रॉस हो जाता है, एक बार ने आपने एग्जिट कर लिया, एंड जब भी ये गोल्डन क्रॉस आया आपने बाय कर लिया। तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा सिंपल तरीका है आपको एंट्री और एग्जिट के लिए। आपका दूसरा एक बात कि आप 2018 में निकल गए और आप 2020 2 साल तक आपने पैसा उसको वापरा, आपका पैसा अटक नहीं गया, ये जो जोन में आपका पैसा नहीं अटका, नहीं तो मेंटली भी आप हैरेस्ट हो जाते, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड जो बोलते रहते हो, स्टॉक मार्केट पैसा नहीं देता है। सिंपल है, आप जो गेम रूल है वो रूल को आप फॉलो करो एंड सी द फन, यू कैन रियली मेक बिग मनी ऑन दिस ओके। एग्जिट करो जब भी डेथ क्रॉस आता है, एंट्री करो जब भी गोल्डन क्रॉस आए। तो अभी फिर से गोल्डन क्रॉस में ही है, एक भी बार क्रॉस दिया नहीं है, यहाँ पे किधर भी सेल आया नहीं है ओके, एंड इट इज अबाउट द 200 डे, इसने 200 डे का सपोर्ट लिया है, एंड इफ इट कीप दिस सपोर्ट ओवर हियर, देन आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 48 जो यहाँ पे है ओके सिंपल ओके। थैंक यू। तो Thank you, छोटे स्टॉक में प्लीज ध्यान रखना, आपको एंट्री अगर बहुत ज्यादा भाग जाता है, 50% घर पे अपना माल लेके आओ, और फिर अफसोस नहीं करना है कि मैं अभी इससे ज्यादा भाग गया। सर ऑयल कंपनी का क्या लग रहा है? ऑयल कंपनी, बिकॉज आज की तारीख में पीपल आर क्रेजी अबाउट इलेक्ट्रिक, तो पब्लिक को लगता है कि भाई ऑयल पूरा का पूरा अभी नहीं चलेगा ओके। तो वो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल के बारे में वो मेंटल माइंडसेट है करके कि ऑयल इज नॉट गोइंग टू वर्क, लेकिन नेक्स्ट 20-30 इयर्स ऑयल बंद तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी डिफेंस वाला जो है वो सब में ऑयल तो लगेगा ही लगेगा। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाला कार्यक्रम बहुत कम चलने वाला है। सो गवर्नमेंट इज स्टिल गोइंग टू यूज ऑयल अदरवाइज ऑल्सो, भले उसमें फिर मिक्स करते रहते हैं ये वो जो भी है वो ओके। डी इन्वेस्टमेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई डी इन्वेस्ट करने वाले हैं ब्ला 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 ओके, तो गवर्नमेंट बीपीसीएल और एचपीसीएल वाला अभी भी अटका हुआ है, एंड आईओसीएल 103, 104 पे अटका हुआ है, जस्ट टू गिव यू दिस आईओसी के हिसाब से। चलो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है आईओसी का, रिजल्ट अच्छा है तो मेरे को बताइए, लेट्स चेक दिस आउट। सर रिजल्ट अच्छा है सर आईओसी का, तो चलो अच्छा है तो बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट पार्ट इज गवर्नमेंट के पास बहुत सारा कंट्रोल है, बराबर है, और डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस कहां पे आया चेक कर लीजिए। गोल्डन क्रॉस कहां पे आया, 82 के आजू बाजू। अच्छा अभी ये करेक्शन आया, फिर से अगर ये गोल्डन क्रॉस जैसा वापस सिनेरियो बनेगा, फिर ये वापस ऊपर जाने का हिसाब। ओके तो अभी ये 100 नहीं तोड़ना चाहिए, विच इज द 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट ओके। ये देखिए जब ये डेथ क्रॉस आया तभी आपने एग्जिट किया, और गोल्डन क्रॉस देखा, एडवांटेज क्या मिल रहा है कि आपका इतना टाइम तक पैसा बच जाता है बरोबर, करेक्ट। ओके। सिंपल रूल है। आप अभी रिजल्ट अच्छा है, मतलब चलना चाहिए हिसाब से, इट सीम्स। ऑफ कोर्स देखिए बोनस कहां पे देते हैं, राइट एट द टॉप, जहां पे
डेथ क्रॉस आया है, हाँ जी ओके 225 वाला नीचे 71 गया। डेथ क्रॉस आने के बाद में प्लीज ध्यान रखो, एक सिंपल रूल को फॉलो करो कंटिन्यूसली। ये देखिए ये डेथ क्रॉस आया, ओके और फिर कंटिन्यूसली प्राइस इज गोइंग डाउन। एक बार गोल्डन क्रॉस आया, प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, वही लेवल से वापस नीचे। ओके तो जस्ट थिंक अबाउट इट, 2018 में और 2020 तक डेथ क्रॉस गिविंग यू वन साइड डाउन। 225 वाला स्टॉक 70 रुपीज में मिला आपको। अब ये आप बैठे रहोगे नहीं मेरा स्टॉक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब भी एक बार भी स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, दैट मींस फंडामेंटली कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी जाके वो नीचे जाता है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाता है, जब भी वो स्ट्रांग हो जाता है, सी द वे इट इज गॉन अप। 100 रुपये वाला 225, लेकिन इसके पहले 2014 में 55 पे था। ओके सो ये गोल्डन क्रॉस का एक ये बड़े में बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है, बड़े में बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। ये रहा गोल्डन क्रॉस एंड यू वांट टू बाय, डेथ क्रॉस यू वांट टू गेट आउट, where the price will keep on going down. ठीक है, सिंपल रूल्स कुछ समझ में आ रहा है? यस सर चलो रूल थंब रूल्स खाली रूल्स को फॉलो करो, मजा आएगा। ओके चलो नेक्स्ट बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंकिंग क्या कर रहा है? बैंकिंग इज द बिगेस्ट अमंग्स एवरीवन, लेकिन एचडीएफसी को भी देख लेंगे डेफिनेटली। ओके तो बैंकिंग को देखते हैं। सो बैंकिंग वाज ओवर हियर, गोल्डन क्रॉस देखिए कहां पे आया गोल्डन क्रॉस, राइट एट 2200, ये वाला करेक्ट है? सर ये एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ये जो डेड क्रॉस और ये गोल्डन क्रॉस वगैरह ये प्लॉट हम करेंगे सर डेली के चार्ट के ऊपर फॉर इन्वेस्टिंग? डेली चार्ट, ऑलवेज डेली चार्ट इज द बेस्ट। देखिए वीकली या मंथली नहीं सर? मंथली वीकली में यस यू कैन, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वीकली में जब भी होता है तभी वो और स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होता है, मींस यू कैन ऐड इनटू योर पोजीशंस। अभी जस्ट एक बार फिर से गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का एवरेज का वो सिखाइए ना, आई जॉइन लिटिल लेट, सॉरी फॉर दैट। नॉट अ प्रॉब्लम। सी गोल्डन क्रॉस का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इट इज दैट प्राइस इज अबव द 50 and the 200 day moving average, that is golden cross. That means price should be above, this is a golden cross, that means over here ये red line और blue line, that means price is above, ठीक है? Whenever the price is above I want to be a buyer, okay, but when the price goes below डेथ क्रॉस बनता है, ओके आई वांट टू एग्जिट द पोजीशन, तो ये डेथ क्रॉस हुआ, यहां पे डेथ क्रॉस हुआ और यहां पे गोल्डन क्रॉस हुआ, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सो एनीथिंग अबाउट द 50 मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। ओके सो बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, लेट्स चेक दिस आउट बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके 200 डे का सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है,
ओके लेकिन फर्स्ट टाइम यार ऑल्सो गिवन आमा केम below the 50 केम नथो तो दिख रहा बरसात માં તો दिख रहा हमर तो दिख रहा हमर રડાવે છે okay it is below the moving average as far as 50 and 20 day moving average is concerned ठीक है and in a correction mode so 90 days के हिसाब से देखते हैं अटक गया okay so this is 90 days 30 days sorry this is 90 days तो 90 डेज में आपको क्या दिख रहा है ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन होके करेक्शन हो रहा है राइट और नॉट 240 मिनट्स में करेक्शन मोड में है तो आप ध्यान रखो पीएसयू बैंक्स पकड़ के रखा है while the private banks are in the down journey ठीक है so let's understand why the bank nifty is weak तो ये बैंक निफ्टी का देख लेते हैं okay now I am going to the daily chart of all the banking stocks okay and you can tell me whether it is in the down journey or up journey okay चलो एक्सिस बैंक क्या कर रहा है डाउन सर डाउन है राइट ओके चलो लेट्स नेक्स्ट वन बंधन बैंक डाउन बैंक ऑफ बड़ौदा साइडवेज गुड फेडरल साइडवेज गुड एचडीएफसी बैंक sideways to down sir down not sideways to down but down why Down. it is below the 200 days and 50 days moving average also which is a sign of concern because ये heavy weight है 30 ये लेके जाएगा सर नीचे ये पॉसिबल है कि ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को खींच के नीचे लेके जा सकता है ओके अभी देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक इट वाज अबाउट ये 200 still okay IDFC first below the 200 day and 50 day डाउन है सर okay Indus Bank results are good but see the way the price has been written down Kotak Bank मेरे को बताइए डाउन डाउन जो सर down right simple that means तीन बड़े बैंक are below the 200 day and 50 day moving average सर आईसीआईसीआई जो सर आईसीआईसीआई को ऊपर है आईसीआईसीआई ऊपर है ऊपर है आपके आईसीआईसीआई ऊपर है ना we saw ना आईसीआईसीआई ऊपर है ओके आईसीआईसीआई is the only one which is ऊपर ओके बराबर है लेकिन चार बैंक तो डेफिनेटली डाउन है ये देखिए आरबीएल डाउन ओके तो एसबीआई इज होल्डिंग एसबीआई और आईसीआईसीआई की वजह से बैंक निफ्टी टिका हुआ है सर नहीं तो टिका हुआ है अभी देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एसबीआई 440 का हाई मारा अभी वो क्या दिखा रहा है बेरिश पियर्सिंग तो एनीथिंग बिटवीन
428 के नीचे चला जाएगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ 423, 415 ये मंथ में, यस और नो? इज दिस नॉट अ डबल टॉप? ऑलमोस्ट। Yes. ओके, तो करेक्शन Sir, मोड आ DCB? गया ये भी बंदा। Sir, DCB, your favorite. DCB, your favorite. डीसीबी, ओके। हाँ. देखो, अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे है तो डीसीबी भी नीचे है ना, उधर का उधर अटक गया है। 250 Sideways है sir. Sideways लगे ना. साइडवेज। Okay. हाँ. अरे हेड एंड शोल्डर बनाया सर इसने अभी। हाँ, डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर बनाया है, डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर बना है, लेकिन इसने 100 के नीचे हेड एंड शोल्डर बनेगा। हाँ। ओके, अगर 100 के नीचे गया तो सीधा सीधा 89 का टारगेट हो जाएगा, Oh. क्योंकि ये फिर 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चला जाएगा। तो अभी तो साइड में लटका हुआ है काफी टाइम से। लटका हुआ. 102, 105. ओके, अच्छा, सिंपल रूल्स PNB? ऑफ द गेम मेरा फेवरेट भी है, लेकिन मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि जब भी ये डेथ क्रॉस आया कभी क्या करने का, भागो। सर आउट चल जाओ. बराबर है? डेड क्रॉस में सर 15-16 में दिस वाज अवर मल्टी बैगर। डेड क्रॉस में सर 50% वर्कआउट कर सकते हैं या हाँ उससे जी? पहले कर देना चाहिए? क्या चीज? डेड क्रॉस से 50% वर्कआउट कर लेना या उससे पहले ही कर देने का है? नहीं, 50% बुकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो ऐसा है ना कि लॉन्ग टर्म के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो आप लोग शांति से बैठ जाते हैं ना। अभी देखिए, ये हमारा फर्स्ट मल्टी बैगर था जब ये 60 रुपीज पे था। ओके, वापिस ये 2016 में भी गोल्डन क्रॉस। ओके, एंड वो गोल्डन क्रॉस वाला अच्छा खासा भागा ना, 83 वाला डबल हो गया ना। अभी ये डेथ क्रॉस जब भी आया तभी एग्जिट तो करना ही है ना, फिर से ये नीचे में मिला ना। फेवरेट होता है, लेकिन फेवरेट कभी होता है जब ये गोल्डन क्रॉस बना तभी मेरा फेवरेट हो गया। फिर ये करेक्शन आया, अब नेक्स्ट जब भी हम लोग 2016 में गए तभी वापस ये फेवरेट हो गया। क्यों? क्योंकि गोल्डन क्रॉस के बाजू में ही था, पैसा डबल हो गया। देखो, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर। ओके, मेरा पैसा अगर डबल हो जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना जरूरी है। सिंपल है। देखिए, मैं भेल की बात कर रहा हूं। ओके, भेल आपको मैंने लास्ट ईयर ही दिया था, 22 था तभी दिया था, बराबर है? अभी देखिए क्या प्राइस में मैंने दिया था जब भी वो 22 था, राइट? हाँ जी, बोलो बोलो। अभी देखिए, जय श्री कृष्ण, चाय पीऊ छू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू, सेम टू यू। ओके, सो रोज जो ये 22 के आजू बाजू आई हैव ना गिवन बस यू 2 प्राइजेस। परीच मारी सामे। बोल क्या छे तू, क्या छे? अच्छा मस्ती જ કહેતી કે કામ માટે ગઈ હતી। ओके, अभी आप बताइए, अभी ये ऊपर 77 गया, हाँ, उसके बाद में 59 आया, तो व्हेन इट विल कम डाउन, वेयर इज अवर डिमांड जोन? 49, 50 के आजू बाजू। ओके, नाउ हाउ डू यू प्ले दिस गेम? अभी भी ये सपोज स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हाउ डू यू प्ले दिस गेम? हाउ डू यू प्ले दिस गेम? तो आपको सिंपल है, आप इसमें फिबोनाची रेशियोज डालिए। ओके, लो टू हाई, ओके, अभी आपको
थोड़ा माल खरीदने का है यहाँ पे के 46 के आजू बाजू खरीदने का, चॉइस इज योर्स। बट ध्यान रखना जो भी स्टॉक्स है, ओके, वो करेक्शन आता ही आता है, कोई भी स्टॉक में करेक्शन देता ही देता है, तो होराइजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 22 रुपीज वाला अगर वो 78 हो जाता है, अगर वहां पे आपने 50% भी बुक नहीं किया तो फिर फायदा क्या? अगर आपने 50% बुक किया है तो आपका वैल्यू 0 हो गया। अभी आप शांति से सो सकते हो ना, मेरे को मेरे जेब से एक भी रुपया नहीं। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज में ध्यान रखो। सेल में देखिए, सेल what it is, when is the golden cross coming in? At 30 rupees, yes or no? बताया था all the steel sector will be strong enough। तो आप देखिए 30 रुपीज वाला अभी 142 रुपीज हो गया। क्यों नहीं बुकिंग करने का? थोड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बुकिंग करने का? घर पे पैसा आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? रोलिंग होगा। अभी ये 151 का हाई था, उसके बाद में 121 आया नीचे। Okay, and now it is at 142. Now the point is, how do I play this game? चलो, अगर इसको मेरे को प्ले करना है, how do I play this game? Please understand, अगर वो डांस कर रहा है for quite some time, that means मेरा 120 के नीचे जाएगा, I should be out completely. Okay, and if it is above the 50 and 20 moving average, ये रहा, then I can add into this position and make money. Add into this position and make money. लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा? No idea, no clue. लेकिन यहाँ पे if you want, you can use your technicals. देखिए, is your Fibonacci lines, correct? Low to high वाला thing, okay? यहाँ से यहाँ से यहाँ, so ये आपका फर्स्ट टारगेट 127 का आ गया। ये 83 के ऊपर गया, you can buy more। 100 के ऊपर गया, you can buy more। 117 के ऊपर गया, you can buy more। 127 के ऊपर गया, you can buy more and you can exit over here itself। अभी ये डांसिंग है, right? Now if it is going below 127, you should be out, chapter over। फिर अफसोस नहीं करने का, नया एंट्री ढूंढने का। Okay, let's take one more rule of the game, is why this 50 and 200 day moving average helps you to make money in the market। अभी देखिए कितने छोटे स्टॉक हैं जो पागल की माफिक चले हैं, राइट? चेन स्क्रिप्ट, HFCL, ये आपको एंट्री कहां पे मिला? 27 पे। 27 वाला 90 रुपीज हो गया। ओके, अभी भी ये सपोज 75 पे है, लेकिन जब इन लोग तोड़ते हैं तभी कितना फास्ट नीचे जाता है। ओके, सो प्लीज जो भी छोटे स्टॉक में आप काम कर रहे हो करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फंस नहीं जाना। अगर गड़बड़ होता है तो बाहर निकलने का मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा है सर? HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। सर Okay. उसका तो बहुत बड़ी बात हो रही है इसके लिए तो। ओके, अभी ऑप्शंस वाले का ये ले लेते हैं। सर एक DFM फूड्स आपको पूछा सर। हाँ, DFM फूड्स, I've sent the message। DFM, Delhi Flour Mill। DFM। Yes, first one। ओके, DFM फूड क्या है बताइए, आप ही मेरे को बताइए। तो डाउन आ जाएगा तो
तो क्या करना चाहिए? सेल खत्म। इमोशंस रखेंगे तो आप अटक जाओगे। सच सच बात है। मयूर भाई ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, यस, चलो ओरियंट RHI मैग्नेसिटा। गुरुवार 8 बज जाएगा तो आज। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय। अभी जब तक उसका रिजल्ट है मयूर भाई अभी। ओके ओके। अभी ओरियंट अभी मजबूत लग रहा है। आई वुड रेकमेंड टू बाय दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या नाम है सर? RHIM। RH मैग्नेसिटा नया का नाम है उसका, पुराना नाम ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज है। ओरियंट रिफ्रैक्टरीज। ओके, मंथली में देख लेते हैं। अभी भी स्ट्रॉन्ग है। वेव 1 2 3, लेट्स सी 292 के आजू बाजू मिले तो बेस्ट है ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। टारगेट क्या मयूर भाई उसका? लेट्स चेक द टारगेट। ओके, 1-2 मिनट दीजिए। $381 is your first target to come out with. 381. Okay. Yes, 381 as a first target. लेकिन अभी भी देखिए, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है कि इसका जो ग्रोथ दिख रहा है ना, इसका जो एंगल ऑफ द मूवमेंट है ना, अभी भी स्ट्रांग है। जनरली ऐसे ऐसे चलते हैं स्क्रिप्ट्स 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर। जब भी इसका जो दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 67 वाला डिग्री के ऊपर चल रहा है, विच सीम्स टू बी ओके। अभी भी उसमें पावर दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट 381 है फॉर श्योर। ये रहा। इट मींस अगर ये रिजल्ट आएगा तो 381 दिखाएगा तो आधा माल निकालने का, तो निकाल। एंट्री कहां पे लिया है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। 305 ना, गुड। मेरा इसका एंट्री 324 के 326 के इधर है। लेकिन देखो ये सब स्टॉक है ना, वो इतना जल्दी भाग नहीं जाएगा ना, ये लॉन्ग टर्म है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म वाला कार्यक्रम है। ओके, सो ये काफी टाइम से ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, और अभी इसका रिजल्ट जब भी होगा और ये झटका दिया तो नथिंग लाइक इट। 1 2 3 रिवर्सल वीकली में भी दिख रहा है एंड ब्रेकआउट की तैयारी है। सो एक दो हफ्ता ऊपर के साइड पे पॉसिबिलिटी है। ओके, RHIM। ओके, इसका जो प्रीवियस हाई था ओके वो समवेयर अराउंड दैट, और उसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है 357। करेक्ट। एनीथिंग अबाउट 350 वो 389 तक पहुंचने का चांसेस है, एंड हाईएस्ट 406 शुड बी अ टारगेट। ओके, एज पर गेन नंबर्स, एज पर गेन नंबर्स। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स बैंक निफ्टी वीक, अभी भी वीक है। ओके, एंड यू वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट द प्ले ऑफ कॉल एंड पुट, करेक्ट? एवरीबडी वांट्स दैट, करेक्ट? Okay, somebody had asked me related to stock के point of view से, okay, and why do I like Maruti and Hero Motors and all the stocks? Because of the way they actually function in terms of technicals. अभी देखिए मारुति खराब है, अच्छा है, क्या है? डेथ क्रॉस आने में है ना, क्या ऑलरेडी आ चुका है? लेकिन जिस हिसाब से ये मूवमेंट दे दिया, ओके,
हाँ, और अभी ये काफी टाइम से साइडवेज है, लेकिन प्रेशर नीचे का ही है, ऊपर का नहीं है। हीरो मोटर्स का देख लीजिए, ये तो हम लोग काफी टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन देखिए yesterday we were in a buy in this particular thing early morning because of the demand zone के point of view से, then definitely आज did go up also but it did not sustain on the top. ये demand Go down, zone ना, इसका, okay, daily chart में demand zone, okay, so we were looking for a buy. तो ये देखिए why it was a buy, ये देखिए मॉर्निंग में we were in a buy in this, okay, and then it went up to 2800 जो हम लोग का वीकली लेवल्स था, okay, and then slowly it came down to 23. Now whichever small time frame you are working on, everything still remains the same, okay, like I said के 10 minutes का rule के हिसाब से it was a beautiful buy and then the price went up, okay, so pressure of the all of auto sector is also down, okay, कोई भी जो भी Go ऑटो down. सेक्टर में देखे, ओके, अभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इवन बजाज ऑटो स्टार्टेड टू मूव डाउन, ओके, व्हिच इज ऑलमोस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम 4200 प्लस, ओके, मेरे को बताइए, इज दिस नॉट अ करेक्शन, डबल टॉप एंड अ करेक्शन कमिंग इन बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, okay, so look again पूरा का पूरा अगस्त महीना there will be a possibility of the auto sector में pressure remaining still, okay, banking में HDFC बैंक, okay, let's check the HDFC also, HDFC का भी कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, okay, because of what housing का understanding. Now let's check this again, death cross coming in for HDFC. अभी सब लोग बोलेंगे इसमें तो अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बाय करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट सी व्हाई देन देयर इज अ डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस कमिंग इन, सो प्रेशर रहेगा, ओके, एंड इफ इट गोज बिलो 2370, ओके, देन देयर विल बी मोर पेन कमिंग इन, रिट्रेसमेंट लाइंस को ड्रॉ करके रख देते हैं डेली चार्ट में, हमका शुरू हो जाता है लकी, જોઈ લો 23 થી નીચે ગયું, 23 થી ઉપર જતું નથી, 38 નું સપોર્ટ લઈ રહ્યો છે, 24 નું, જેવું 24 તોડશે સીધું 2260, that is the target. धीरे धीरे भी ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप होने का चांसेस बड़ा है HDFC में भी, ओके, अनलेस एंड अनटिल एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया और वो फिर से ऊपर रहेगा तो, लेकिन जो भी बड़े स्टॉक है, ओके, दे आर बीइंग बिटन डाउन, तो या तो तुम, इंडिया बुल हाउसिंग, हाँ, इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग, ओके, चलो तो HDFC इज डाउन, ओके, ये पकड़ के रखा है, लेकिन एनीथिंग बिलो 260 एंड इट इज आल्सो बाय बाय टाटा 2221, एनीथिंग बिलो 260 बाय बाय टाटा 2261, ओके, થોડા કરી લેવા છે, છૂટી જવાનું, છૂટી જવાનું, બહાર નીકળવાનું, પાછો નીચેથી માલ મળશે, બરાબર, સાચી વાત છે સાહેબ. अपोलो हॉस्पिटल देख लीजिए, सॉरी, अपोलो हॉस्पिटल पकड़ के रखो, चलेगा,
Being down. In the main down. ओके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना. ओके, इट इज राइट एट द टॉप एंड फर्स्ट टाइम बेरिश एनगल्फिंग मिला आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम. ओके, लेकिन अभी भी स्ट्रांग है, मजबूत है. अगर नहीं बेचना है तो चुपचाप बैठ सकते हो टिल if it breaks 3800 then you can think about selling, otherwise there is a strong support at 3900. दोबारा कहाँ एंट्री कर सकते हैं? और एंट्री नीचे जब भी 3900 पे आवे या तो 3800 के ऊपर आवे तभी. लेकिन एक मेरे को ऐसा लगता है कि अगस्त में एक अच्छा करेक्शन आने में है. तभी एक बैंकिंग विल गो डाउन, जो कचरा स्टॉक विल बी गोइंग डाउन एंड पब्लिक विल बी सेइंग बाय 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 बाय. तभी आपको आपका लेवल्स पकड़ के रखोगे तो वहां पे 30% का एंट्री मारने को मिलेगा. See, please understand, banking is the weakest among all. Plus अभी ये मंथ में जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर का नंबर लगा है तो एक एक सेक्टर रोटेशन में लोग नीचे फेंक रहे हैं. ओके, लेकिन निफ्टी को पकड़ के रखा है बिकॉज आईटी खींच के रखा. लेकिन ओवरऑल प्रेशर है, करेक्शन मोड में आने का तैयारी है. Sir, real estate. IB real estate. कौन सा? IB real estate. India Bull. IB real India estate. Bull real estate. ओके, ऑलरेडी करेक्शन मोड में. देखिए, चलो अगर आपको समझना ही है तो ये देखिए, ये क्या है? बेरिश एनगल्फिंग. जब भी ये हुआ आप एग्जिट कर लो 50%, यू आर फाइन. ओके, देखिए ये भी बेरिश एनगल्फिंग था, बराबर है. बेरिश एनगल्फिंग था और कितना नीचे तोड़ा. फिर जब ये ऊपर जाता है तभी आपको बाय करने के लिए मिलेगा. ये 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, मींस 125 वाला 70 पॉइंट. ओके, अभी जब ये ऊपर जाता है तभी आपको एंट्री करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अभी ये 200 डे का सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर जाओ. ये बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ, मींस अभी नाउ यू आर इन अ बाय. ध्यान आ रहा है? ओके, लेकिन करेक्शन में देखिए, जब भी वो करेक्शन लेता है तभी 123 वाला 75 रुपीज परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो पूरा का पूरा साफ कर देता है आपको. ओके, जैसे एक्सिस बैंक है. ओके, 200 तक गया था सर इसको. रिजल्ट उसका अच्छा आने के बाद में भी इसको तोड़ दिया. इसका रिजल्ट अच्छा था लेकिन तोड़ दिया. ओके, एंड बैंक निफ्टी को क्यों खींच के लेके जा रहा है? बिकॉज ऑफ अपना हीरो HDFC बैंक. 4 महीने से कुछ गड़बड़ चालू है और ये ऊपर में सस्टेन नहीं होके 100 रुपया नीचे फेंक दिया, विच इज ड्रैगिंग द बैंक निफ्टी डाउन. अभी 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया फर्स्ट टाइम. सो लुकिंग एट दिस एज अ टारगेट फॉर HDFC बैंक. और 100 रुपया नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी भी इसके साथ साथ में नीचे जाएगा, मजा आ जाएगा. आपको सस्ते में माल मिलेगा. वेट करो, घाई मत करना. अभी रुक नहीं करो. इनफ ऑफ स्टॉक. ओके, एक सिस्टम बता देता हूं जो सिस्टम से इंट्राडे में काम करने को एडवांटेज मिलता है. सपोज यू आर प्लेइंग द निफ्टी. ओके, नाउ दिस इज योर निफ्टी का कॉल एंड पुट. दिस इज पुट एंड दिस इज योर कॉल. दोनों 15,700 का. अभी मेरे को बताइए, somebody wanted to understand this. Angelo, are you there? Yes, yes, I'm here. Okay, great. Now see this. You will not be able to catch the top, correct? But you will be able to catch where it has to be caught. Okay, this is call and put of 15,700. Think about this. 226, roughly 226. And over here also 226, 230 levels.
and if you sell around that 226 230 levels, that means कितना points आपको मिलना चाहिए technically speaking? Say 50 something like that. 250 250, right? Yeah. Roughly. So roughly 500, Mm-hmm. and you will be able to get your theta decay. Okay, those who are playing the intraday game. Okay, those who are playing the intraday, I'll show you. इसमें the same rules apply. Okay, those who are want to play the intraday, check this out. Price going up, right? Price going up. तो आपको एग्जिट भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर के साइड में सेल हो जाता है. ये देखिए ऊपर के साइड में सेल होता है, तो दिस प्राइस इज नॉट एबल टू गो अप. तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट फॉर द नेक्स्ट वीक? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डज इट इंडिकेट? और प्राइस कहां पे जाएगा, क्या जाएगा? थिंक अबाउट दिस. How does it works? Price is going down on the higher time frames. Yes or no? Okay. In this case, price went to 255 and was down at 54. This is the put, and this is your call. The call also 255 से 120. तो थीटा डीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Just think about this. Okay. Look at Bank Nifty. क्या बता रहा है? Angelo, you just need to follow the rules. Lines बना के रखो. And when the drop starts, this is the place you can sell. Just draw the lines. This is our game plan, right? You just need to draw your lines in place. That's it. Now this is a P call of 34,600. Don't need to follow too many things. Okay, give me any strike price and I will give you the rate where we can actually work this out. Derivatives में जाओ, okay, call put में जाओ, बैंक निफ्टी में जाओ, 26th of August नहीं, अभी 5वें अगस्त का. Okay. Okay, let's check 3500 का call and 35200 का call and put. See this simple lines. And the price has not gone beyond 525. Now it is at 86. Why can't we have this? Okay, change script. Check this out on your put side. It will be on the higher side, right? Okay. So one will give you a correct direction. One of the script will give you a correct direction where it wants to go. Okay, and see the way the other script are being sold at the high. But very important that the direction is being given by one of them. एक direction will be clear. 700, 800 means 1600 points you are bringing home. 1600 points. Again, it becomes very important that you are, if you want to play the game, not in this week, start observing the आगे वाला week, not this week. ये गड़बड़ हम लोग करते रहते हैं.
Okay, let's check the Maruti chain script. Okay, Maruti का मैं आपको बता देता हूँ. Call put. Okay, where is this? 7,000. Say 7,100, 7,200. Call put. Okay, approximately कितना पॉइंट है मारुति का दोनों का मिला के? Around 450 points. Yeah, 450, 500, yeah. Right? So check the call. Is it going to go down? Of course. See the place where it is being sold. Okay. Now see, call is going down. That means it is one side down only. No? Right now it is at 95. Okay. Just 1 week back, it was at 300. Now it is at 95. So put का price क्या होगा? Change script. What will be the put price? Any idea? Any clue? Tell me. Now, if you are using the same rule of the game, okay, drawing the lines, okay, where is your 1, 2, 3 reversal coming in? Where is your 1, 2, 3 coming in? Over here. And then you are in a buy. Daily chart maybe. Are you getting it? Whether it is Bajaj Finance. Okay, let's check one script, one more. Okay, Bajaj Finance. Bajaj Finance now under correction. So let's check the call put of this 6500 का. ठीक है? तो call of 6500. See. Okay, and let's check the put. Will it be up? Of course it will be up. $352. One day and you get your direction correct. Okay, now this is what you need to do. If you just draw your lines in place, daily chart mein. So where will your entry come in? 320. So now tomorrow, if you are going to get it around 320 wala thing, okay, dil mange more, because this is definitely a strong up move, right? Bullish. So 6,500. So not to jabardasti say sell, call and put together. You don't know. But now if this is a pressure, okay, definitely it is going to work. So this is what you just need to follow. Only two things for your directions. Only two things. What is your two of your call put ka thing is coming in. I'll just give you this golden rules again. Check this out. New share. यहाँ पे आपको क्या करना है? Okay. When you draw your lines, okay, just is it going up or is it going down? ये confirmation आपके पास आ जाएगा. Your direction will be clear. So people say, I don't understand where the price is going. Don't to worry. Just check this out on a higher fund. Daily chart में आपका call and put को confirm कर लो. Okay, two of your call and put will give you a clear direction. And एक महीना खाली इसको observe करो. Next month में आप उसमें trade डालो. It is going to work. Even if you don't observe, this is going to give you a clear picture whether I want to go up or whether I want to go down. And use the rule
again and again and again and again for the same stocks. Don't deviate. 3 महीना उसी में काम करो and you will get the whole picture. जैसे Hero Motors, it was going down, so there was no way to buy. तो ऊपर में call one side sell ही था, लेकिन put price was going up continuous basis पे. तो फिर क्यों नहीं करने का ऐसा काम? Now after a strong drop, okay, now it is coming in the demand zone, so I will have to wait. Lines बना के तैयार रखना पड़ेगा. अभी आप 2800 के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन once it goes above the 2800, the call also confirms and the put confirm price going down, then I am in a buy. Clear है? Any questions? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So thank you very much. In case you have any questions, any this thing, leave a message. We can discuss this week. Not a problem. The only thing I am telling you is, okay, you have to book your profits from time to time. In case you see the price reversing, okay, 50% का booking करो, नीचे में माल फिर से मिलेगा. Okay, it's going to make a hell of a lot of difference. Okay, because कभी बड़ा correction आएगा and you will get stuck. आपका cash आपके पास नहीं रहेगा, नीचे में माल पिकअप करने को नहीं मिलने वाला है. And where it will get stuck, nobody knows. So keep booking profit. And if you want to understand more on a specific thing, Angelo, you need to get in touch with me. Only 2 stocks for the whole month, and that is all what you want. But follow the rules, follow the game. You have your blueprint in place. Just it is working beautifully well. Okay. 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 Chalo. Any other questions? Sir, one complaint. Yeah, please. Why Angelo and why not others? Because he is one of my favorites. I have first. He's your favorite. आप लोग कोई भी मेरे को फोन करके बोल सकते हो. Okay. So first one to ask question was Angelo, so I had to address to him. So Angelo, thank you. Tarun ji, Vinod ji, thank you. Kasu sir, thank you for coming in. Kunal, Mahesh bhai, Naveen, Samir ji, Sunil, thank you all for joining me and giving your valuable time and money also. We thank you very much. On the contrary, sir. Thank you, boss. Thank you. हमको सिखाने के लिए. Thank you. हम सीखते भी थे आपके पास से. Thank you, sir. Okay. Thank you, man. Yeah. Love you. Take care. No, और एक कंप्लेंट है. Thank you so much. Thank you so much, sir. एक गुड मॉर्निंग चालू नहीं करते आप. करेंगे सर. सुबह का 6 बजे का रूटीन फिर से स्टार्ट करना है. हाँ, मूर्ते का भूल गया अभी सुबह. नहीं, चलो फिर से चालू करते हैं पक्का. हाँ, थैंक यू. ओके, बाय. 6 बजे का रूटीन फिर से स्टार्ट करेंगे बस. Thank you, sir. ओके. See you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Take care. Thank you for this wonderful cause you have taken part in.